Hello everyone, I am Assistant Professor Zinkal Patel from Raffle BCA College. Welcome to IT Tools for Business. Now, today I am going to explain new topic, that is chart in Excel. Now, in Microsoft Excel, a chart is often called as a graph. It is a visual representation of data from a worksheet that can bring more understanding to the data than just looking at the numbers, right? For example, there is a table of all the students and their marks in respective subject. So we can create a chart from that data for more understandings, right? So just looking at that numbers, we can create a chart in Excel. Now, a chart is a powerful tool that allows you to visually display data in a variety of different chart format like bar chart, column chart, pie chart, line chart, area chart, donut chart, scatter chart, surface chart or radar chart, right? And it is very easy to create a chart with Excel, right? So here I also mention different types of chart like bar chart, column chart, pie chart, line chart, area chart, donut chart, scatter chart, surface chart or radar chart, right? So these many types of chart available in Access, and as I said that it is very easy to create chart with Excel. Okay, now let me create a chart in Excel. Now here are some data like bears, dolphins and whales. Total number of whales, dolphins and bears are there, that is shown in month January, February, March, April, May and June. It means in January there are 8 bears, 150 dolphins and 80 whales. But in February it becomes 54, then 77 and then again whales 54, right? So here are some data mentioned in one table. Now we can create a graph or a chart from this table. So first step is to select this table. Just click on that cell and drag to end of that table, and in this way we can select this table. Now go to insert menu. Now insert menu, there is a one chart option, chart tab. In that column, line, pie, bar, area, scatter and others charts is available like surface, donut, bubble, radar, right? So all chart type are available here. Now first let me explain with column chart. Now column chart can also be cylinder or it may be like cone, it may be like pyramid, right? Now let me first create column chart in 2D column chart, right? 2D and 3D both available. Let me first explain 2D column chart. So after selecting this table, automatically one chart is generated, right? Now जैसे ही चार्ट क्रिएट होगा वो डिफरेंट उसकी विंडो ओपन हो जाएगी और आपने देखा होगा कि दो और मेनू जो है, तीन और मेनू जो है वो क्रिएट हो जाएगा लाइक डिज़ाइन मेनू, लेआउट मेनू एंड फॉर्मेट मेनू. नाउ from design menu we can select different chart style like already displayed one chart, this one we can create in this way. different design हम यहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइन हैं, उसमें से कोई भी एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं like this, right?
नाउ हियर चेंज चार्ट टाइप. नाउ ऑलरेडी जो क्रिएट है उससे हम दूसरी अगर चार्ट क्रिएट करना है तो वो हम क्रिएट कर सकते हैं. लाइक कॉलम में जो है वर्टिकल जो है वो कॉलम चार्ट है और बार चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं. राइट, ऐसे हमने बार चार्ट भी चेंज कर दिया. राइट, तो इन दिस वे वी कैन चेंज अवर चार्ट टाइप. नाउ नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट डेटा. नाउ यहाँ से हम डेटा सिलेक्शन भी चेंज कर सकते हैं. लाइक यहाँ से रेंज जो है हम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. नाउ चार्ट लेआउट जो है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं. हमें ऐसा लेआउट रखना है. ठीक है, पीछे की ग्रिड स्मॉल हो जाएगी या तो फिर ऐसा लेआउट रखना है, हम सब चेंज कर सकते हैं. राइट, नाउ यहाँ पे मूव टू अनदर लोकेशन, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ. नाउ नेक्स्ट मेनू इज लेआउट. नाउ हियर too many chart elements are available here, like chart title. If I click on chart title right now, do not display a chart title. ठीक है, यहाँ पे वो टिक है कि चार्ट टाइटल डिस्प्ले नहीं हो रहा है. नाउ सेंटर्ड ओवरले टाइटल, अगर मैं ऐसा क्लिक करूँगी तो सेंटर में चार्ट टाइटल आ जाएगा. और अबो चार्ट मतलब it display a title at the top of chart area and resize chart. जस्ट सेंटर पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे चार्ट टाइटल जो है वो आ गया. वी कैन गिव चार्ट टाइटल लाइक चार्ट 1 दिया है मैंने. राइट, नाउ अनदर एलिमेंट इज एक्सिस टाइटल्स. लाइक एक्स एक्स एंड वाई एक्स, दोनों एक्स के टाइटल दे सकते हैं. अभी टाइटल नहीं है तो हॉरिजेंटल एक्सिस पे अभी हमने कुछ भी टाइटल डिस्प्ले नहीं किया, लेकिन टाइटल बिलो एक्सिस हम डिस्प्ले कर सकते हैं लाइक दिस. लाइक हम उसको चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे एरो ले जाके. लाइक वी कैन से मंथ. वैसे ही यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस भी चेंज कर सकते हैं. लाइक दिस वन एक्सिस टाइटल, उसमें हम दे सकते हैं एनिमल्स. टोटल एनिमल्स. राइट, नाउ अनदर वन इज लीजेंड. नाउ लीजेंड मीन्स दिस वन. बियर्स का कलर कौन सा है? ब्लू. डॉल्फिन्स का ऑरेंज एंड वेल्स का ग्रे. तो जब हम लीजेंड्स पर क्लिक करेंगे, सी सो लीजेंड एट द राइट. नाउ हम टॉप में भी लीजेंड शो करवा सकते हैं दिस मैनर, या तो फिर बॉटम में भी हो सकता है इन दिस वे. राइट, ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप भी हो सकता है राइट में, लेफ्ट पे भी ओवरलैप हो सकता है. हम लीजेंड जो है मतलब दिस वन, ये वो हम चेंज कर सकते हैं. नाउ डेटा लेबल्स मीन्स ये जो हमारे डेटा है उसको भी लेबल्स करना है. अभी नन है, ठीक है, लेकिन हम सेंटर में इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड ऐसे लेबल कर सकते हैं. सी डेटा वैल्यूज आर डिस्प्ले इन दिस मैनर. ओके, सो हम डेटा को लेबल्स भी कर सकते हैं. नाउ डेटा टेबल्स भी, यहाँ पे अगर हम लीजेंड की बात करें, लीजेंड को हम यहाँ पे मूव कर देते हैं. ठीक है, सो जस्ट शो लीजेंड एट द टॉप. राइट, नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बॉटम ऑफ दैट डेटा, इफ वी वांट टू डिस्प्ले दिस टेबल, देन डेटा टेबल को ऐसे क्लिक करेंगे तो वो डेटा टेबल भी डिस्प्ले हो जाएगा. राइट, क्लियर. नाउ जो पीछे ग्रिड लाइन है, अगर उसको हम हॉरिजेंटली, वर्टिकली, अभी हमने मेजर ग्रिड लाइन डिस्प्ले की है, फिर कोई भी ग्रिड लाइन, अगर ग्रिड लाइन नहीं चाहिए तो नन कर सकते हैं, तो वो भी रिमूव हो जाएगी. नाउ यहाँ पे ये जो है वो प्लॉट एरिया है लाइक दिस वन. अभी शो प्लॉट एरिया, तो प्लॉट एरिया शो हो रहा है. और ये जो है उसको बोलते हैं चार्ट एरिया, जो प्लॉट एरिया के आउटसाइड जो है. ठीक है, सो वो इतने एलिमेंट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं. ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल जस्ट मैं डेटा लेबल्स और टेबल को नन कर देती हूँ. ठीक है, सो इन क्या होगा, चार्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ओके फाइन. नाउ ट्रेड लाइन,
वी कैन डिस्प्ले ट्रेड लाइन, लाइक लीनियर ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है लेकिन बियर्स के लिए तो ऐसी होगी, ठीक है, जहाँ पे वो ब्लू लाइन जो है वो बियर्स है। नाउ डॉल्फिन के लिए है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं डॉल्फिन, ठीक है, दोनों ट्रेड लाइन आ गई। फाइन, क्लियर, hope you understand the element, all the element of the chart, right? Now third menu is format menu. Now we can change the style or fill color. We can also change fill color like this, shape outline हम change कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे 3 मेनू हैं वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। फाइन, लेट मी clear that color, okay, by control Z. Now as I said that डिज़ाइन में और एक ऑप्शन है, फॉर एग्जाम्पल मूव चार्ट। अगर मैंने चार्ट को मूव किया, नाउ न्यू शीट क्लिक किया, मूव चार्ट टू न्यू शीट, और न्यू शीट का नाम क्या होगा, चार्ट 1। इफ़ आई क्लिक ऑन ओके तो एक और शीट रेडी हो जाएगी, उसका नाम है चार्ट 1, तो उसमें सिर्फ चार्ट डिस्प्ले होगा, राइट, क्लियर, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ 2 कॉलम का चार्ट ड्रॉ करना है, लाइक मंथ वाइज दिस वन एंड देन उसके अकॉर्डिंग वेल्स। अब मैंने कैसे सिलेक्ट किया, पहले कंट्रोल प्रेस करके पूरी मंथ की कॉलम सिलेक्ट की, कंट्रोल प्रेस करके वेल्स की जो नंबर्स है वो सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर से गो टू इंसर्ट मेनू इन दैट चार्ट, नाउ कॉलम चार्ट है, ठीक है, तो मैंने कॉलम चार्ट सिर्फ वेल का ड्रॉ किया, ठीक है, वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। और उस पे से हम फॉर एग्जांपल इंसर्ट मेनू में से पाई चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये पाई चार्ट हुआ, वेल्स की वैल्यू मंथ वाइज, ठीक है, यहाँ पे लिजेंड में दिखा रहा है मंथ का कलर कौन सा है। उसका लेबल्स भी कर सकते हैं हम, लेआउट में जाके डेटा लेबल्स पे अगर सेंटर में लिखें तो वो डेटा लेबल्स भी आ गए, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी कैन ऑल्सो ऐड लेबल इन चार्ट, ठीक है। डिफरेंट टाइप के चार्ट है, लाइक पाई चार्ट, लाइन चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। फिर बार चार्ट है, बार चार्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, एरिया चार्ट है, देन स्कैटर, डोनट, bubble, all types of charts are there, you can select any one of them, right? So hope you understand this chart and chart type. Now if you have any query regarding this chart, then you can tell me. Thank you.